Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. Second year F, Commerce. A very good start for you people. Now, before starting the lecture, I am again requesting you that you all have to be very much attentive while you are capturing the words of accounting. So we have already done so many questions for the depreciation. In the today's class, I also proceed towards the more questions regarding depreciation. So we have done many questions from the past papers, and in the current lectures, I'm also focusing on the past papers questions. I am requesting you that you all have your books of accounts with you. Your calculators should be near to you. Okay. Then open your books of accounting also, so that we can do the proper class rather than you are just hearing my lecture. But while you are just hearing, you have to do it with me. Okay. So I am proceeding towards the today's lecture. Hope so you all are attentive. We have exam question number 13. This is on your Petiwala 4th edition, second year accounting. We have exam question number 13 on book page number 52. So I'm requesting you all to open your books of accounts. This is your book page number 52, exam question number 13 I'm talking about. Okay. So now what you have to do in this question, this is there we have question mentioned, the Park Suzuki purchased a machine for Mitsubishi Limited of Japan. So Mitsubishi is a Japan based company, and we are here we are here to start this depreciation question. From this question, we have purchased machinery from Mitsubishi, and that was a costing of rupees 2500,000, okay, for cash on March 1st. What you have to do, you have to highlight your you can say the name of the equipment which you have purchased. आपको अपना फिक्स एसेट पता होना चाहिए. The name of the company जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, like you are making a recording for the Park Suzuki. ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपनी, देन डेप्रिसिएशन स्टार्ट कीजिएगा. वी हैव लिस्ट प्राइस ओवर हियर 2500,000. डेट इज ऑल्सो मेंशन March 31st 2000. तो हमारे पास जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके पास डेप्रिसिएशन में कौन सा फिक्स एसेट है, नेम ऑफ द कंपनी और उसकी डेट क्या है, ये आपके पास मेन कंटेंट होते हैं. देन आगे हम प्रोसीड करेंगे कि हमने कौन सा मेथड इसको यूटिलाइज करना है. द मशीन वॉज एस्टिमेटेड टू हैव एन ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ 4 years. ईयर्स की बात हो रही है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या फिर डिमिनिशिंग हो सकता है. एंड देन रेजिडुअल वैल्यू इज 500,000. रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि हम डिमिनिशिंग में तो यूज करते नहीं है, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन ज्यादा हैं. वी हैव एस्टिमेटेड लाइफ, जिसको हम लोग यूजफुल लाइफ भी कहते हैं, दैट इज योर 4 years, एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 500,000. क्लियर? I am proceeding towards the required. Calculate depreciation on the machine for the year ended December 31st 2000 and December 31st 2001. आप लोग के पास डेटा कौन सा गिवन है? March 31st 2000 का डाटा गिवन है, जो कि आपको ने दिसंबर की कैलकुलेशंस करनी है. मार्च से लेके दिसंबर तक हमारे पास कितने डेज हो जाते हैं, ज़रा कैलकुलेशंस कीजिएगा. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, हमारे पास कितने डेज कितने मंथ्स बन रहे हैं, आपने वो कैलकुलेट करना है. देन वी हैव दिसंबर 2001. ठीक है, और दिसंबर 2001 में आपकी जो मशीन है वो फुली डेप्रिशिएट होगी. एस्टिमेटेड लाइफ 4 years है. फर्स्ट ऑफ ऑल विच मेथड यू हैव टू अप्लाई, उन्होंने पार्ट ए में आपसे बोला है जो आपको अप्लाई करना है, दैट इज योर 40% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, परसेंटेज आपको अप्लाई करनी है 40%. बट बिफोर अप्लाइंग व्हाट यू हैव टू डू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक रूल आपको बताऊं कि क्या रूल था हमारे पास. फर्स्ट ईयर की जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट पे अप्लाई होती है, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ईयर्स आते हैं उनकी कैलकुलेशन हम बुक वैल्यू पे करते हैं. ये मेन कंटेंट है. आई रिपीट वंस अगेन, जब भी आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करेंगे, आपको क्या बातें अपने जहन में रखनी है. एक तो आपके पास परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है,
विदाउट परसेंटेज डिमिनिशिंग नहीं कर सकते। डिमिनिशिंग के दूसरे नाम क्या है? डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग। इसके लिए आपने फर्स्ट ईयर पे जब भी डिमिनिशिंग अप्लाई करना है तो टोटल कॉस्ट पे अप्लाई करना है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए बुक वैल्यू होनी ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर की जो भी डेप्रिसिएशन होगी वही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी। देन बुक वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा TC माइनस AD। ओके, नाउ इट्स योर टर्न दैट you people have to calculate the diminishing balance method। 40% आपने अप्लाई करनी है एंड 2000 की डेप्रिसिएशन मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। नाउ स्टार्ट यू वर्किंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट, मेक वन कॉलम। हम लोग टैबुलर जिस तरह बनाते हैं टेबल, ठीक है, सीरियल नंबर, एयर, टोटल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन बुक वैल्यू। ये आपके पास पूरा बॉक्स फॉर्मेट बनेगा। मैं आप लोग के साथ करंटली क्लास में सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज व्हाट आई हैव फाउंड कि मैं आपको यहाँ पे फैसिलिटेट पहले कर दूँ, बिकॉज आफ्टर गेटिंग माई लेक्चर्स यू पीपल आर नॉट डिस्कसिंग, नॉट डूइंग solutions by yourself. So first of all you have to do the solutions, then I will discuss the answers. I am here but we will discuss the answer later. Yes, for the first year we are applying diminishing balance method 40% for 2000. We are solving this question. Okay, आज मार्च 31 है, जरा डेट फोकस कीजिएगा यहाँ पे दोबारा से, मार्च 31 है तो मार्च को आप काउंट नहीं करेंगे, ये अपने पास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्च का महीना एंड हो चुका है। जो आप लोग मंथ्स कैलकुलेट कीजिएगा वो अप्रैल से स्टार्ट कीजिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, क्योंकि मार्च की स्टार्टिंग की डेट नहीं है, मार्च एंड हो चुका है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च हम नहीं लेंगे, आप अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल टिल दिसंबर, ठीक है, फिर मंथ कैलकुलेट कीजिएगा। वी हैव I'll let you know. First of all, you have to solve by yourself. आप लोग टोटल कॉस्ट पे 40% अप्लाई करें, 2500,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9/12, ठीक है, एंड देन you have to get the answer. Yes, please do. We have even done the 40% diminishing balance method. What is the procedure we have done? We have taken the machine cost to 2500,000 multiplied by 40 divided by 100. Then I apply a month, that is 9/12. 9th मंथ में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा मार्च का 31 है, तो आप मार्च को काउंट नहीं करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ से मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आ रहा है 750,000, ठीक है। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। देन टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, या जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी वही उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। आप लोग TC माइनस AD करेंगे और आपकी बुक वैल्यू आएगी 1,750,000, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू। For the second year you have to apply the percentage on this book value। 1750,000 पे आप 40% अप्लाई करेंगे। मंथ आप लोग मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, या मंथ जो 12 से क्योंकि डायरेक्टली कट जाएगा, मंथ ना भी अप्लाई करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन वी विल गेट द आंसर, दैट इज योर 700,000। जब आप 1750 पे 40% अप्लाई करते हैं हमारा आंसर आएगा बेटे 700,000। क्लियर। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर अगर मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 1750,000 माइनस 700,000 और मेरी बुक वैल्यू आएगी 1,1050,000, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। 1750 and 700, yes, 1,050,000, आई एम श्योर। This is your calculation of first year diminishing balance method. For the first year you have book value 1750,000. For the second year you have book value 1050,000. Clear? Now we have solved the first question, diminishing balance method. Then we have to solve second part, that is your 20% on straight line method. Clear? Then I proceed further. Wait for a while.
Now we have done the diminishing balance method. After diminishing balance method, the calculations from the diminishing balance method for 2000 we have book value 1750. For 2001 we have book value 1050,000. Now I'm switching towards the next part, that is your 20% on straight line method. Okay, but for the straight line method they have given you the percentage. What you people have done, you people have applied the फॉर्मूला. ठीक है, उन्होंने आपको 20% दी है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो कि आपने बाय फॉर्मूला सॉल्व करी है, टी सी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई यू एल, और फिर आपने उस पर मंथ अप्लाई किए हैं 9/12. मुझे कोई आप लोगों में से ये बात डिस्कस करे और इसका मुझे कॉन्फिडेंस बताएं कि आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है और आपके पास उन्होंने 20% भी दिया है. हमारे पास जो मेथड उन्होंने कहा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन for the year ended December 31st 2000 and December 31st 2001 under each of the following methods separately. ठीक है, and then they have given you 20% on straight line method also and they have given you the formula. यहाँ इन्होंने आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन बाय परसेंटेज करना है या बाय फॉर्मूला करना है. क्लियर? इन्होंने आपको बाउंड नहीं किया, परसेंटेज भी दे दी स्ट्रेट लाइन के लिए और आपको फॉर्मूला के लिए सारा डाटा भी प्रोवाइड किया है. तो आप लोग यहाँ पे बाउंडेड नहीं हैं. अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड बाय परसेंटेज भी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है बाय फॉर्मूला, इसलिए हम इसको बाय फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो लेकिन अगर आप लोग में से कोई बाय परसेंटेज करना चाहता है तो कर ले, बट हम फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए प्रेफर करते हैं कि अगर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करने के तमाम टूल्स मौजूद हैं देन यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं कहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको बाय परसेंटेज ही सॉल्व करना है. ये दे आर नॉट बाउंडिंग यू राइट नाउ हियर. We have second part. I am proceeding further. Give an adjusting entry to record depreciation of 2000 under straight line method. Yes, we have to record adjusting entry, depreciation expense debit, allowance for depreciation credit for the straight line method. ठीक है, तो straight line method की जो 2000 की आपने कैलकुलेशन की है वो कितनी आती? 375,000. ठीक है, 375,000 थी. वो आपके पास एडजस्टिंग एंट्री बनेगी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जो क्लोज करना है आपको 2001 को. ठीक है, क्लोजिंग के लिए अमाउंट डेप्रिसिएशन की ही यूज करेंगे, लेकिन क्लोजिंग एंट्री आपके पास बनती है एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट. और 2001 की डेप्रिसिएशन से आपकी वैल्यू आई थी बाय डिमिनिशिंग 700,000. क्लियर? देन आई प्रोसीड फर्दर. हमने करंटली पार्क सुजुकी कंपनी की मशीन गिवन है जिसकी कॉस्ट है 2500,000. ठीक है, डेट मेंशन है मार्च 31st, डेट को फोकस करना है और इसकी डेट है 31st, इसलिए हम मार्च के मंथ को कैलकुलेशंस में काउंट नहीं करेंगे. देन मशीन वॉज एस्टिमेटेड हैव अ ऑपरेटिंग लाइफ, जिसको हम ऑपरेटिंग लाइफ को एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ भी कहते हैं बेटे, ईयर्स में दी हुई है. तो आपके पास डिमिनिशिंग या स्ट्रेट लाइन यूज होता है. रेजिडुअल वैल्यू गिवन है जिससे आपको कंफर्म हो गया है कि रेजिडुअल वैल्यू आपकी सेल्वेज वैल्यू होती है जो कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड में हम यूज करते हैं. दैट इज योर 500,000. देन टोटल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. We have to apply the formula for the straight line method. For the diminishing balance method, we are applying the percentage, that is your 40%, and then we are applying also the months. ठीक है, ये हमारे more technical parts थे. In the last two, they are asking you for the adjusting entry. Adjusting entry का उन्होंने specify आपको year बता दिया है. तो 2000 की जो depreciation की amount आएगी ना मेरा बेटा, उसी की adjusting entry बनाइएगा. Clear? उस अमाउंट को आपने लेना है. मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड की कैलकुलेशन जो आपने 2000 से करी थी उसकी वैल्यू आई थी 375,000. ठीक है, उसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 375,000. क्लियर? देन पार्ट 2 है हमारे पास, गिव जर्नल एंट्री टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दिसंबर. क्लोजिंग एंट्री बनेगी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 2001. ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन आपके पास आंसर आया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रही हूँ जो कि 700,000 आई थी, उसकी आपने क्लोजिंग एंट्री बनानी है.
क्लोजिंग एंट्री हमारे पास क्या बनती है, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिटेड एंड देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिटेड, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री बनती है टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, इन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करने को बोला है, क्लोजिंग एंट्री नहीं बोला। एक मिनट, गिव जर्नल एंट्री टू क्लोज डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग एंट्री है मेरा बेटा, ठीक है, टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। वी हैव जर्नल एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एंड क्लोजिंग एंट्री बनेगी आपकी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिटेड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिटेड, ठीक है। अमाउंट होगी आपकी 700,000। क्लियर? I proceed towards the next question. Then we have to proceed exam question number 10, book page number 51. अपने पास टिक कर लीजिए, this is on book page number 51, exam question number 10, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करती हूँ। बुक पेज नंबर 51 में आपके साथ प्रोसीड कर रही हूँ। दिस इज वी हैव टू डू हाउ, yes, it's a very good question. Number 1 we have defined depreciation, जी depreciation को define करना है। What is depreciation? We have to focus the depreciation and definition and state whether it is a loss of expense or not, and you have to explain कि क्या depreciate होने से loss of expense होता है, यहाँ आपके पास नहीं होता। I am coming towards the participation section. Depreciation is not your loss, it gives you the book value of your current fixed asset, and whenever I talk about the depreciation, always our fixed assets will be depreciated with the passage of time. It will reduce the value after its utilization. Clear? We have the B part. The following are the balances before making any adjustment on December 31st, 98. The end of the accounting year. अब आपके पास उन्होंने कहा है the following balances हुए हैं। इसमें आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की कैलकुलेशन के लिए। टेबल फॉर्म कीजिएगा। आपके पास इस वक्त जो डाटा दिया हुआ है वो उन्होंने करंट डाटा दिया हुआ है 97 का, ठीक है, और 98 की आपको कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने आप लोग के लिए डेट हाईलाइट कर दी है, दिसंबर 31 की क्लोजिंग पे, मतलब 31 दिसंबर को आपके पास जो डेटा मौजूद होगा डेफिनेटली वो 97 का होगा ना, ठीक है। वॉट यू हैव टू डू, मशीन की कॉस्ट 75,000 है और इससे पहले मशीन डेप्रिशिएट हुई है 15,000, ठीक है। तो आपके पास बुक वैल्यू क्या आनी चाहिए? यस, वी हैव व्हाट इज द बुक वैल्यू वी हैव ओवर हियर? 15 सॉरी, टोटल कॉस्ट इज 75,000। मशीन की जो डेप्रिसिएशन है जो 15,000 है वही उसका एडी होगा, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर, एज अ फर्स्ट ईयर हम इसको काउंट करेंगे। आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 60,000। नाउ व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द ईयर 98, तो आप 60,000 पे 30% अप्लाई करेंगे। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। इन्होंने आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताई हैं, इसका मतलब 98 का जो ईयर है वो जनवरी टिल दिसंबर पूरा यूटिलाइज हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर? एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 98 depreciation. I repeat once again, the 75,000 and 15,000 is the data of 1997, which is the before making any adjustment data of 98. कैलकुलेशन उन्होंने आपसे कहा है कैलकुलेट कीजिएगा डेप्रिसिएशन 30% बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को आपने यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है, और आपने 98 की कैलकुलेशन करनी है। हमने सबसे पहले टेबल बनाना है, serial number, then total cost, depreciation, accumulated depreciation, book value. Previous lectures में आपको वो टेबल किस तरह फॉर्म होता है, कैसे हम उसकी टेबुलर कैलकुलेशंस करते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। टोटल कॉस्ट अब हमारे पास इस वक्त आ रही है 75,000। डेप्रिसिएशन गिवन है 75,000 and 15,000 is your depreciation for the current year. Then accumulated depreciation is also 15,000. And then we have accumulated depreciation, that is your 60,000. Clear? So we have is your 60,000. What will be the value? 60,000 then multiplied by 30 divided by 100. We have the value 18,000 over here. Clear? This is for the first second year 1998.
Then we have to calculate the book value, 60,000 minus 18,000. Now we have the value, book value is 60,000, TC minus AD is your 42,000. That will be your book value for 1998. Clear? So this is your diminishing balance method by 20%. I'm coming towards your participation section again. Yes, we have after part A, we have part B, set up the depreciation account and then machine account and then allowance for depreciation. आप लोगों ने 3 T account बनाने हैं. पहला T account बनेगा depreciation का, ठीक है. दूसरा T account बनेगा मशीन का. वो तो सबसे आसान होता है. मशीन की जो कॉस्ट है बस आपने उसको डेबिट साइड पे लिख के खत्म कर देना है, ठीक है. मशीन का T account सबसे आसान है. करंटली आपको मशीन की टी अकाउंट बनाना है. कॉस्ट दी हुई है 75,000, जो कि आपने डेबिटेड साइड पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. टी अकाउंट का जो डेबिटेड साइड होता है उस पर 75,000 लिखते हैं, उसको CD और BD कर दें, ठीक है. Then we have T account of depreciation, allowance for depreciation, balance and close. यानी उन्होंने आपको बताया है कि CD and BD भी करें of 98. अच्छा सिर्फ एक ही साल की depreciation लेनी है, ये भी बहुत आसान है. depreciation expense के T account बनाए. 98 की depreciation आई थी हमारे पास 60,000 पर 30% 18,000 आई है, ठीक है. 18,000 डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनेगा. डेबिटेड साइड पे आप 18,000 लिखेंगे और फिर उसको CD एंड BD कर देंगे. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिटेड साइड पे आता है, इसलिए आप उसको क्रेडिटेड साइड से स्टार्ट कीजिएगा. 18,000 से या अपनी एंट्री बनाएंगे और फिर उसको भी डेबिट साइड पे CD एंड देन BD कर दीजिएगा. क्लियर? मैं थोड़ा सा क्विक आप लोगों को बता दूं कि प्रिपेयर करनी है पार्शियल बैलेंस शीट ऑफ 1998. पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हम पार्शियल का मतलब हमें एक साइड, एक रुख दिखाना होता है बैलेंस शीट का. हम इसमें सिर्फ एसेट साइड शो करने वाले हैं. टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर बुक वैल्यू आ जाती है. टोटल कॉस्ट 75,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही है? 15,000 and then 18,000. We have 15 and 18, 33. Yes, we have 33. Value will be 42,000. ठीक है. I repeat, partial balance sheet total assets में आपने मशीन की कॉस्ट लिखी है 75,000, लेस किया accumulated depreciation that is 33,000, and then you will have your book value that is 42,000. That's all for today. Thank you so much. We have completed this question. And hope so you all have done with me with full energies and good participation in the class.